Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope all of you are doing well. Students, we are reading chapter 4, Agriculture and Main Crops. So our today's topic is about farm animals. You will know more about farm animals and learn about their importance and uses. Before moving to the main topic, let's revise some important points of yesterday's lecture. Yesterday we discussed about animal farming that deals with rearing of animals and birds, and domestication of animals started 12 to 15,000 years ago. Another important point is the great invention of wheel that took place about 5,000 years ago in the region of Fertile Crescent, and it brought great changes in agriculture, industry and transportation. And next is selective breeding. It is an artificial selection of desired traits in living things through a process controlled by humans. It brought great changes in agriculture and livestock farming. Selective breeding is used to have good production. Students, you know, animal farming is an important aspect of the agriculture. Most farmers keep some animals and poultry, but in some part of the world, livestock is the most important kind of the farming. दुनिया के कुछ इलाकों में लाइफ स्टॉक फार्मिंग जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो समझा जाता है, और उसकी रीज़न जो है ये है कि स्टॉक रेयरिंग इज़ ऑफन ऑन पुअर लैंड विच इज़ नॉट रियली रिच एनफ टू ग्रो गुड क्रॉप्स, कि उन एरियाज़ का, उन कंट्रीज़ का, उन रीजन्स का लैंड जो है वो इट इज़ नॉट फर्टाइल टू ग्रो क्रॉप्स. दैट्स वाई दे प्रेफर लाइफ स्टॉक फार्मिंग. So let's talk about some farm animals. First is cattle. Cattle are generally the most important farm animal and found in most climates from tropics to near Arctic regions. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे अहम फार्म एनिमल है और ये ट्रॉपिक रीजन से लेकर आर्कटिक रीजन जो है वो इनकी सारे क्लाइमेट में जो है वो ये पाला जा सकता है. आर्कटिक ट्रॉपिक्स आर द रीजन्स ऑफ अर्थ सराउंडिंग द इक्वेटर. इक्वेटर के इर्द जितने भी इलाके हैं उसको हम वो ट्रॉपिक्स रीजन जो है उनको कहते हैं. हेयर द टेम्परेचर इज मोस्टली वेरी हाई, और वाइल दी आर्कटिक रीजन्स जो हैं इट इज़ अ पोलर रीजन लोकेटेड एट द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ. यहाँ पर समर्स जो हैं वो शॉर्ट होती हैं, कूल होती हैं, वाइल जो यहाँ पर विंटर्स हैं वो काफ़ी लंबी होती हैं एंड इट्स क्वाइट कोल्ड, सो दे कैन सर्वाइव इन बोथ दीज रीजन्स. Cattle include cow, buffaloes, oxen and yaks. So now let's see what are the different uses of cattle. The main use of cattle are for meat, beef cattle, and for milk and dairy products. And beside meat and milk, it is also provide us skins for leather, which is vitally important for Pakistan's large sports industry. The other uses of cattle is pulling carts and plows and drawing water in less developed countries. Although there are many million of cattle used for farm jobs, especially in Asia and Africa, they are slowly being replaced as they already have been in the West by tractors and other machinery. कि cattle जो हैं वो उनका काम जो है वो प्लोइंग और पुलिंग कॉट के लिए और ड्राइंग वाटर फ्रॉम द वेल जो है वो उनके लिए इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन अब मोस्टली जो है उनको रिप्लेस किया जा रहा है विद मशीनरी लाइक ट्रैक्टर. सो उनका जो मेन यूज़ ऑफ कैटल इज़ टू get meat, milk and skin from them. So cattle scientists are trying to cross breed ताकि ऐसी ब्रीड जो है वो सामने लाई जा सके जिनसे which are able to give better production of meat and milk. For this purpose, different breeds of cattle are reared across the world and in Pakistan. So let's see some cattle breeds of Pakistan. They are Red Sindhi, Cholistani, Tharparkar, Sahiwal. So Sahiwal, Red Sindhi, these are the breed of cattle breed of Pakistan, and they are very much they give us a high yield of milk and very good quality of milk. So these are very successful. Here is some information. Argentina is one of the biggest cattle farming and beef exporting countries. An estimated 52 million cattle are farmed and 50,000 tons of beef are exported. However, the export is only 20% of the meat production, as about 80% is consumed at home. Argentina is one of the biggest cattle farming and beef exporting countries. इसका नंबर जो अर्जेंटीना का जो नंबर है डैट इज़ 6. नंबर 1 पे जो है वो यूएसए है, एंड इन दिस फील्ड पाकिस्तान स्टैंड्स एट द पोजीशन ऑफ 9th नंबर जो है वो पाकिस्तान का रैंक जो है वो इसमें आता है. एंड पाकिस्तान इज़ द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री, एंड 2/3 ऑफ दिस कम्स फ्रॉम बफेलोज एंड रेस्ट फ्रॉम द काउज.
एंड यही रीज़न है कि मैनी मल्टी नेशनल मैन्युफैक्चरर्स ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स हैव देयर प्लांट्स इन पंजाब एंड सिंध। उन्होंने प्रोडक्ट्स के लिए अपनी डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए अपने प्लांट जो हैं वो सिंध और पंजाब में जो हैं वो कायम किए हुए हैं। So now let's move to the sheep. Sheep are even more widespread than cattle because they are able to live under harsher conditions. They will eat the short, hard grass on which cattle will not thrive. शीप जो है वो हर जगह पाई जाती हैं और उसकी रीज़न जो है वो क्या है कि ये सख्त से सख्त हालात जो हैं, हार्श कंडीशन जो है उसमें भी गुजारा कर लेती हैं, कुछ भी खा सकती हैं, शॉर्ट ग्रास, हार्ड ग्रास खा लेती हैं जो कैटल जो हैं आमतौर पर नहीं खा सकते। दे कैन लिव एट हायर एल्टीट्यूड एंड इन कोल्डर क्लाइमेट्स एज वेल एज इन द ट्रॉपिकल रीजन। अब इनका सर्वाइवल जो है वो हायर एल्टीट्यूड पे लाइक माउंटेनियस रीजन्स पर भी, कोल्डर क्लाइमेट में भी, और ट्रॉपिकल जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो हाई होता है वहाँ पर भी इनको पाला जो है वो जा सकता है। So let's see what are the uses of sheep. Sheep are reared for wool. Mostly इनको wool के लिए जो है वो पाला जाता है. They are the important source of wool. Mostly wool के लिए about they are reared for wool about 50% and about 15% for meat. But there are some kind of sheep that are also reared for both and for milking as well. कुछ जो शीप हैं उनकी रेयरिंग जो है वो सिर्फ इसलिए की जाती है कि उनसे वूल जो है वो हासिल की जाए। 15% जो है वो उनसे मीट जो है वो हासिल किया जाता है। कुछ शीप जो हैं उनसे मीट और मिल्क दोनों हासिल, मीट और वूल दोनों हासिल किए जाते हैं। सिमिलरली उनसे मिल्किंग का काम जो है, मिल्क जो है वो भी हासिल जो है वो किया जाता है। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट इट इज़ वेरी वैल्यूएबल फॉर द इकॉनमी, स्पेशली इन पाकिस्तान, ईरान एंड इंडिया। गर्ल्स एज शीप आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वूल, हम इससे वूल जो है वो हासिल करते हैं। देर आर डिफरेंट वराइटीज़ ऑफ वूल, जो वूल जो है उनकी डिफरेंट वराइटीज़ जो हैं। लेट्स सी व्हाट आर देयर वराइटीज़, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वूल। नंबर वन इज़ टफ हार्ड वियरिंग फ्लीस कॉमन इन पाकिस्तान, ईरान एंड इंडिया। कि ये वो टफ़ और हार्ड और सख्त किस्म की वूल है जो उन भेड़ों से हासिल की जाती है जो पाकिस्तान, ईरान और इंडिया में पाई जाती हैं। एंड दे आर आइडियल फॉर कारपेट एंड रग्स, इनसे कारपेट और रग्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। Next is merino sheep. Merino wool is got from the merino sheep. Here you can see this one is merino sheep, and these sheep are specially reared for getting wool only. इनसे वूल जो है वो हासिल की जाती है। एंड इट इज़ सॉफ्ट, सिल्की एंड एक्सपेंसिव वूल। ओरिजिनली दिस वाज फाउंड इन स्पेन। स्पेन जो था वो इसका बेसिकल रीजन था, बट इट इज़ नाउ प्रोड्यूस्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन अब दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है वो इसको पाला जाता है और इसकी वूल जो है वो वैल्यूएबल होती है। सो इट इज़ यूज इन द मेकिंग ऑफ एक्सपेंसिव थिंग्स, काफ़ी ज़्यादा लाइक कारपेट, लाइक ब्लैंकेट्स, स्वेटर, शॉल्स, ग्लव्स, हैट्स बनाने के लिए जो है वो इस्तेमाल जो है वो की जाती है। सो लेट मी टेल यू एन इंटरेस्टिंग थिंग। A merino sheep in Australia was captured after living 6 years in the wild, having escaped from the flock. And this is the incident of 2004 कि एक मरीनो जो शीप थी वो ऑस्ट्रेलिया में अपने फ्लोक से जो है वो अपने गौल अलहदा हो गई और वहाँ पर जंगल में जो थी वो चली गई। एंड शी वॉज कैप्चर्ड आफ्टर 6 years एंड इट वॉज शेयर्ड ऑन टेलीविजन। टेलीविजन पे उसकी जो खाल जो उसकी जो वूल जो थी वो उतारी गई। एंड हैड इनफ फाइन वूल टू प्रोवाइड क्लॉथ फॉर मोर देन 20 मेन सूटिंग। और उसके अंदर से इतनी जो वूल जो थी वो उतारी गई कि उससे 20 लोगों की जो हैं वो ड्रेसेस जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द कराकुल वूल। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी कराकुल शीप से जो है ये हासिल की जाती है। इट इज़ इवन मोर वैल्यूएबल। इट इज़ फाउंड इन अफगानिस्तान, ईरान एंड सेंट्रल एशिया। हेयर यू कैन सी देयर आर डिफरेंट कलर्स लाइक ग्रे, वाइट, skin and black and brown. These are all the colors of Karakul wool, and this is very expensive and it is used in the making of different valuable things. Astrakhan coats and hats. The Karakul wool and is used in the making of Astrakhan coats and hats, and this is the skin of newly born lamb. जो नया बच्चा जो है, छोटा जो उनका बेबी होता है, उसकी जो स्किन है। एंड इफ़ यू कैन सी ऑन विच इट इज़ ऑन विच द वूल इट इज़ इन टाइट ब्लैक कर्ल्स। ब्लैक कर्ल्स में जो है वो होती है और इसको जो है वो इस्तेमाल किया जाता है इन द मेकिंग ऑफ कोट्स एंड हैट्स। ये यू कैन सी कि ये जो इसके कर्ल्स हैं टाइटली
कर्ल्स जो हैं वो इस हैट में भी आपको नज़र आएंगे। एंड इंटरेस्टिंग फैक्टर इज दैट मोस्ट ऑफ़ यू हैव सीन दी जिना कैप, जो कायद अज़म की टोपी है वो भी कराकुल वूल से जो है वो बनी है, और इसको उर्दू में हम कराकुली टोपी जो है वो भी कहा जाता है। सो ये बहुत ही कॉमनली जो है वो इस्तेमाल की जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इफ़ यू सी द प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान हामिद करज़ई ऑन टेलीविजन, तो ही इज़ ऑफन सीन वेयरिंग अ कराकुल हैट, तो उसने भी वो जो है वो पहनी होती है। और ये जो हैट, ये जो वूल है, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। और कहाँ से ये हासिल की जाती है? जो एक इसका न्यू बॉर्न लैम्प है उससे हासिल की जाती है, जो जिसकी वूल जो है इट इज़ इन टाइट ब्लैक कर्ल्स उसमें जो है वो होती है। सो नेक्स्ट इज़ द गोट्स। गोट्स आर क्लोजली रिलेटेड टू शीप बट विल लिव इन इवन हार्शर कंडीशंस। ये भी शीप की जो है वो से नज़दीक होती हैं, लेकिन डिफरेंस जो है शीप का और गोट्स का जो है वो क्या क्या, इवन हार्शन कंडीशन में जो है वो इससे ज़्यादा सख्त हालात में जो है वो ये सर्वाइव कर सकती हैं। दे आर वेरी वैल्यूएबल बिकॉज दे कैन लिव ऑन ऑलमोस्ट एनी स्क्रैप ऑफ वेजिटेशन। किसी किस्म का भी सब्ज़ी या कोई भी जो उनको घास फूस कोई भी चीज़ जो मिले उससे खा के वो गुजारा कर सकती हैं। और इसी वजह से ये इनफर्टाइल एरियाज़ में और जैसे पाकिस्तान का है बलूचिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, इसमें बड़ी आसानी के साथ पाली जा सकती हैं। और पाकिस्तान में बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनका मोस्ट ऑफ दम हैव द ऑक्यूपेशन ऑफ रियरिंग गोट्स एंड शीप। लेकिन यही चीज़ जो है वो उसका डिसएडवांटेज जो है वो ये भी है कि दे कैन ओवरग्रेज द लैंड, कि एज दे कैन eat anything, they can almost eat any scrap of vegetation, so they can overgraze the land. और इसकी एग्जांपल जो है कि 2 मिलियन मिलीनिया अगो, तकरीबन 2000 साल पहले, द लैंड ऑफ नॉर्थ अफ्रीका वर द मेन ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ द रोमन एम्पायर, बट व्हेन दिस collapsed, the wandering herds of goat turned huge area of it into desert by destroying all the vegetation. कि नॉर्थन अफ्रीका जो एक मेन ग्रेन प्रोडक्शन एरिया था जब रोमन एम्पायर थी, लेकिन जब उनको शिकस्त हो गई तो जितने भी हर्ड्स ऑफ गोट्स थे उन्होंने उसको खा के सारी जो ज़मीन थी उसको ख़त्म कर दिया, उसको सहरा जो है वो उसमें तब्दील कर लिया। सो दिस इज़ देयर डिसएडवांटेज। सो फॉर दिस पर्पज़ उनको जो है वो दे आर यूजली केप्ट मूविंग इन फ्लोक्स, उनको एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव करवाते रहते हैं, वरना किसी भी एक जगह पर ये वहाँ की वेजिटेशन जो है वो उसको ख़त्म जो है वो कर देती हैं। सो देयर आर ऑल्सो डिफरेंट यूजेज ऑफ गोट्स. Goats are beloved of the poorer farmer in remote regions because they provide them milk of high quality, wool, and meat. And they also provide them wool which is generally rather very coarse. काफ़ी इनकी जो खाल है वो सख्त होती है. एंड दिस हार्श एंड कोर्स हेयर आर गुड फॉर कारपेट्स. और इनकी जो बाल हैं उनके साथ चूँकि सख्त होते हैं इसलिए इनसे कारपेट्स बनाने के लिए बहुत अच्छे इस्तेमाल होते हैं. इसके अलावा इसका एक और इंटरेस्टिंग यूज़ जो है वो ये है, दे आर यूज फॉर कैरिंग लोड्स इन रफ माउंटेनियस रीजन. कि अगर आप देखें कि माउंटेनियस इलाके में, पहाड़ी इलाकों में ये वज़न जो है वो उठा के लेके जाती हैं और पैक एनिमल के तौर पर जो है वो इनको यूज़ जो है वो किया जाता है. सो मेन पर्पज़ जो है वो इनका मीट, they are rearing for meat, hair, milk and skin, but they are also used for carrying heavy loads in rough mountainous region. और उनके जो हेयर जनरली जो गोट्स होती हैं उनके चूँकि कोर्स होते हैं, टफ़ होते हैं, सख्त होते हैं, इसलिए वो कारपेट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं. बट देयर आर सम गोट्स जिनके जो हेयर हैं दे आर लग्जरियस, दे हु हैव लग्जरियस हेयर लाइक अंगोरा गोट्स. अंगोरा गोट जो है इट इज़ वन ऑफ द ब्रीड ऑफ गोट दैट हैव लग्जरियस हेयर, एंड द अंगोरा गोट प्रोड्यूस द सुबर्ब सॉफ्ट एंड कॉस्टली अंगोरा वूल विच इज़ यूज टू मेक एक्सपेंसिव गारमेंट्स. कि अंगोरा जो गोट है उसकी जो सॉफ्ट और कॉस्टली वूल जो है उससे बहुत ही जो गारमेंट्स बनाए जाते हैं वो काफ़ी कीमती जो हैं वो बेचे जाते हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव जो हैं वो होते हैं. और अंगोरा का जो बेसिकली ओरिजिन है डैट इज़ फ्रॉम इट बिलोंग फ्रॉम टर्की. टर्की का जो कैपिटल है डैट इज़ अंकारा एंड इट्स फार्मर नेम वाज अंगोरा. सो दिस रीजन वाज एसोसिएटेड विद दिस प्रोडक्ट. अंगोरा जो है इट इज़ फेमिलियर नेम टू अंकारा जो आजकल टर्की का जो है वो कैपिटल है. सिमिलरली देयर आर स्मॉल कश्मीर गोट्स दैट मेक इवन द मोर एक्सपेंसिव कश्मीरी वूल. इनकी जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ गोट, अंगोरा गोट्स एंड कश्मीर गोट्स, जिनकी जो हेयर हैं वो काफ़ी लग्जरियस होते हैं, फ़ाइन होते हैं और कॉस्टली होते हैं. और जो बाकी जो गोट्स हैं उनकी हेयर जो हैं वो इतने
एक्सपेंसिव और सॉफ्ट जो हैं वो नहीं होते. शीप और गोट्स जो हैं दे कैन सर्वाइव ऑन any place, whether it is dry area, it is mountain, plain, plateaus, even deserts. सो शीप और गोट्स जो हैं वो दे आर केप्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. किसी किस्म का भी एरिया जो है वो उसमें इनकी परवरिश जो है वो बहुत अच्छी तरह जो की जा सकती है. सो अगर आप देखें तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में और नॉर्दर्न एरियाज़ में मोस्ट ऑफ द पीपल हैव द प्रोफेशन ऑफ रियरिंग गोट्स एंड शीप. सो नाउ मूव टू हॉर्सेस, डंकी एंड म्यूल. दे आर द बीस्ट ऑफ बर्डन. जनरली जो है वो इनको इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कैरिंग लोड के लिए, बिकॉज दीज आर द बीस्ट ऑफ बर्डन. इनका मेन काम जो है वो यही है. सो फर्स्ट वन इज़ द हॉर्स. दे आर नॉट यूजुअली केप्ट इन लार्ज हर्ड्स बट आर ब्रेड इन मच स्मॉलर नंबर. अब इनको बड़े बड़े हर्ड्स में जो है वो नहीं परवरिश किया जाता, बल्कि थोड़े नंबर में जो है वो पाला जाता है. उसकी रीज़न जो है वो क्या है, क्योंकि इट इज़ डिफ़िकल्ट एंड एक्सपेंसिव टू रियर. इनकी परवरिश करना जो है वो बहुत मुश्किल है एंड एज इट नीड्स अ ग्रेट डील ऑफ अटेंशन. इनको बहुत ज़्यादा अटेंशन जो है वो चाहिए होती है. सेंसिटिव एनिमल है. एंड नाउ आर डेज horse are not widely used in most part of the world as working animal on farms but more for pleasure riding on horses. मतलब आजकल जो है इन द पास्ट हॉर्सेज वर यूज टू पुल हैवी लोड्स एंड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते थे. लेकिन आजकल जो हैं हॉर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो एज अ फॉर्म एनिमल जो है लाइक टू वर्क ऑन फॉर्म जो है वो नहीं रहा, बल्कि लोग इसको अपने फॉर प्लेयर सेक जो है वो इसको करते हैं. राइडिंग के लिए यूज़ किया जाता है, रेस कर लगाने के लिए जो है वो इसको इस्तेमाल जो है वो किया जाता है. सो इट इज़ next is the donkey. It is a much tougher animal, which is why it is used so widely in the Pakistan. बहुत टफ एनिमल है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है. द डंकी कार्ट इज़ यूज्ड वाइडली फॉर कैरिंग गुड्स. सामान डंकी कार्ट्स आपको नज़र आएंगी जो सामान एक जगह से दूसरी जगह जो है वो लेके जा सकती हैं. इट इज़ हार्डी, कैन लिव ऑन आलमोस्ट एनी डाइट एंड वर्क स्टाइलसली. ये किसी भी किस्म की खाना जो है खुराक जो है वो खा लेता है और वर्क स्टाइलसली, थके बगैर जो है वो मुसलसल जो काम कंटिन्यूसली जो है वो काम करता है. इट इज़ मच मोर श्योर फुटेड दैन द हॉर्स, सो इट इज़ फार मोर यूजफुल ऑन माउंटेन्स और रफ कंट्री साइड. और चूँकि ये इसका पाँव जो है वो घोड़े से जो है वो थोड़े से छोटे होते हैं चनाचा, इसकी इस क्वालिटी की वजह से ये माउंटेनियस जो एरियाज़ हैं या जो कंट्री साइड है वहाँ पर ये बहुत अच्छी तरह से सर्वाइव कर लेता है. सामान कैरी करके जो है वो उन इलाकों में जो है वो चला जाता है. सो इफ़ यू सी मोस्टली म्यूल्स एंड डंकीज़ आर यूज्ड in the mountainous region to carry the loads and performing the different tasks. We think that donkey is a slow and plodding animal. लेकिन आमतौर पे ख्याल किया जाता है कि डंकी जो है वो एक स्लो एनिमल है, सुस्त एनिमल है. लेकिन इसकी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है वो ये है कि व्हेन नेसेसरी इट कैन बी सरप्राइजिंगली फास्ट, कि ये बहुत तेज़ी के साथ भी भाग सकता है अगर कभी ज़रूरत पड़े. द वाइल्ड डंकी कैन रीच स्पीड्स ऑफ अप टू 70 किलोमीटर पर आवर एंड कैन कीप अप 24 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर्स विदाउट अ ब्रेक. कि अगर कभी सिचुएशन ऐसी हो जाए तो जो वाइल्ड डंकी है उसकी स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर जो है वो हो सकती है. और सिमिलरली ये 2 घंटे मुसलसल 24 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार के साथ, फी घंटा की रफ्तार के साथ जो है वो भाग सकता है. So here is some fact about wild Asiatic donkey. It is endangered species, and the Run of Kutch, which is the part of the Indian state of Gujarat, is one of the India's largest wildlife sanctuaries. Sanctuaries होती हैं जंगली हयात की पनाहगाह, जहाँ पे जंगली हयात जो है वो रहती है. It is the only one home of the endangered Asiatic wild donkey, which is a member of the wild horse family. These animals are strong and exceptionally fast. इनकी क्वालिटीज़ जो है वो क्या है कि ये वाइल्ड हॉर्स फैमिली से जो है वो बिलोंग करते हैं और ये स्ट्रॉन्ग और एक्सेप्शनली जो है वो बहुत फास्ट जो है वो होते हैं. अगर आप देखेंगे सो इनकी शेप जो है सिमिलर लाइक द हॉर्स. नेक्स्ट वन इज़ द म्यूल. इट इज़ अ क्रॉस बिटवीन फीमेल हॉर्स एंड अ मेल डंकी. इट इज़ वेरी टफ, इट इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, इट इज़ वेरी काम. ये चूँकि ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसलिए इनके अंदर दोनों की क्वालिटीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं कि ये उतना ना तो ये हॉर्स से इतना हाइटेड है, सिमिलरली ये डंकीज़ की तरह जो है वो शॉर्ट हाइटेड भी नहीं है. इसकी हाइट जो है वो मीडियम है, काम है. इट इज़ मोर हार्ड वर्किंग दैन द डंकी एंड द हॉर्स, एंड इट कैन लिव लॉन्ग
लाइफ देन अ हॉर्स, हॉर्स से ज़्यादा इसकी लाइफ है। तो सो सम टाइम इट इज़ वेरी स्टबन, लेकिन ओवरऑल इसके अंदर हॉर्स और डंकी दोनों की जो क्वालिटीज़ हैं वो पाई जाती हैं। सो म्यूल इज़ ऑल्सो यूज टू कैरी लोड इन डिफरेंट एरियाज़, स्पेशली माउंटेनियस एरियाज़, जहाँ पर आसानी के साथ ये सामान जो है उठा के जो है वो जा सकते हैं। इफ़ यू गो टू द नॉर्दर्न एरियाज़, दीज आर ऑल्सो यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। So girls, it's all about today's lecture. So hope you have understood about the different uses of farm animals and their kinds. So now let's recap. Cattle include cow, buffalo, oxen and yak. Cattle are the most important farm animals as they can found in Arctic region as well as in the tropical regions. Sheep are important source of wool, and sheep and goats can survive in harsh conditions. That's why they are found in the infertile or rough areas. Reared, they are basically sheep and goat are reared for milk, meat, skin, and hides. Horses, donkey, and mules are the beast of burden. So it's your home task. Read the topic from pages 38 to 40 for your better understanding and do the following question. Do you know what animal are preferred for livestock farming in Pakistan and why? Okay, Allah Hafiz. Thank you.